Okay, as you know, in our last session, we have started the topic of the consideration. In our last lecture, we discussed all the essential valid consideration, or what you can call as the legal rules as to the consideration. Now, today we are going to deal with the fresh point, and the fresh point we are starting as a suit by a third party to a contract, or what you can call it as the doctrine of the privity of contract, or what we can call as a stranger to contract cannot sue. I already told you, if there is a contract between Amit and Sumit, accordingly Amit is going to sell his house to the Sumit for rupees 5 lakh, and Sumit is going to pay rupees 5 lakh to the Amit. Okay, now if Amit refused to sell the house to the Sumit, it is only Sumit who can take action. Okay, in that particular situation, nobody else will allow to file the suit. So the law says that when a contract is between A and B, a stranger to contract cannot sue, a stranger to contract cannot be sued. So accordingly, अगर आपको याद होगा तो हमने एक रूल भी डिस्कस किया था, considering the case of a Chinnaiya versus Ramayya, there cannot be a stranger to contract, but there can be a stranger to consideration. Okay, consideration किसी और से आ सकता है, but वहां पे क्या नहीं हो सकता, बोलो कॉन्ट्रैक्ट अगर ए और बी के बीच में है तो सी वहां पे सूट फाइल नहीं कर सकता. That's the point which we have discussed in our around second point, कि consideration may move from the promisee or any another person under the heading of Chinnaiya versus Ramayya. बट आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जब भी कहीं पे लॉ है ना, तो लॉ विल बी सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस. लॉ इसका मतलब उसके साथ में एक्सेप्शंस आते ही है. तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस व्हेन इवन दो देयर इज नो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और इवन अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल द सूट. ओके, ऐसे अराउंड हमारे मॉड्यूल के हिसाब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से 7 सिचुएशन है या 7 लोग हैं जो भले ही पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट स्टिल दे कैन टेक द एक्शन. ओके, तो हमें क्या करना है, ध्यान में जनरल रूल डिस्कस करना है कि stranger to contract cannot sue, as because I already told you, if the contract is between P and Q, then R cannot take any kind of the action in that particular situation. And this general rule is subject to some exceptions. That 7 exceptions in general rule we are going to discuss. Okay. Okay, so let's start our fresh question. Sued by a third party to contract. As I was telling you that if a contract is between P and Q, then R cannot sue and R cannot be sued. That is the general rule कि अगर कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में है, ए और बी के बीच में, तो वहां पे सी कोई एक्शन भी नहीं ले सकता और सी पे हम एक्शन नहीं ले सकते. बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस. ओके, लेट्स चेक आउट जनरल रूल. सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट is not allowed, and this general rule is subject to exception. This rule is also known as the doctrine of the privity of the contract. Though under Indian Contract Act 1872, the consideration for an agreement may proceed from a third party. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रेंजर नहीं चलेगा, बट कंसिडरेशन may move from the promisee or any another person. Okay, इसका मतलब there may be a third party consideration, but third party to contract allowed नहीं है वहाँ पे. Okay, there can be a stranger to consideration, but there cannot be a stranger to the contract. Let's see. The consideration for an agreement may proceed from a third party. The third party cannot sue on a contract. Only a person who is a party to contract can sue on it. Okay, जो party to contract है वही क्या कर सकता है, एक्शन वहां पे ले सकता है. Thus, the concept of stranger to consideration is a valid and is different from the stranger to contract. Stranger to consideration चलेगा, but stranger to contract नहीं चलेगा वहां पे. एग्जाम्पल क्या दिया है देखो वहां पे, P who is indebted to the Q. ध्यान में आ रहा है आपको, P ने Q से कर्जा लिया हुआ है. P is indebted to the Q. प्रॉपर्टी टू द आर. P ने कर्जा किससे लिया है, देखो वहां पे Q से. इसका मतलब एक लोन वाला जो ट्रांजैक्शन है वो किसके बीच में, क्रेडिटर डेटर वाला रिलेशनशिप किसके बीच में, P और Q के बीच में क्रेडिटर डेटर वाला रिलेशनशिप है. नाउ P who is indebted to the Q sells his property to the R. P अपनी प्रॉपर्टी किसको बेच रहा है, ध्यान में आ रहा है, R को. R Q को प्रॉमिस करता है कि वो Q के सारे पैसे दे देगा. ध्यान में आ रहा है, बट क्रेडिटर डेटर वाला रिलेशनशिप और लोन वाला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, P और Q के बीच में. ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया.
एक दूसरे ट्रांजैक्शन के अंडर पी अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको बेच रहे हैं, देखो आर को बेच रहे हैं, हाँ। और अब यह आर क्यू को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपका वो लोन जो पी ने आपसे लिया आपको पे ऑफ कर दूंगा, ओके। एंड आर promises to pay off the debt amount to the Q, हाँ। If R fails to pay, R अगर पे करने से फेल हो जाता है, then such a situation Q has no right to sue, क्या अगर R नहीं पे करता है तो Q R पे सूट नहीं फाइल कर सकता, क्यों बोलो, R is considered as a stranger to the contract, हाँ। R is a stranger to the contract, हाँ। The aforesaid rule that the stranger to contract cannot sue is known as, इसको एक नाम क्या बोलो और एक doctrine of privity of contract है, is however subject to certain exceptions, हाँ। मतलब भी नीचे दिए गए exceptional circumstances में क्या होगा बोलो वहां पे even a stranger to contract may enforce a claim, हाँ। stranger to contract भी सूट फाइल कर सकता है, कब कब देखो, नंबर 1 एक्सेप्शन है उसका ट्रस्ट, हाँ। I'll just give you one particular example, हाँ, so that you can understand. देखो एक father है, and उस father की कुछ property है, okay, and he has a son, old, sorry, yeah, he has a son of a 10-year-old, उसको एक 10 साल का बच्चा है, हाँ। अब उस फादर को ना अराउंड कैंसर हुआ है, लास्ट स्टेज कैंसर है, एंड फादर नोज दैट सून ही इज गोइंग टू डाई, हाँ। और उसके कुछ ही रिश्तेदार है, मदर तो है नहीं उस बच्चे की, और उस फादर के कुछ ही रिश्तेदार है जो बहुत लालची लोग हैं। तो फादर इज वेरी मच केयरिंग अबाउट द फैक्ट कि मेरे बाद अपने बच्चे का क्या होगा वहां पे, हाँ। तो उस फादर का एक फ्रेंड है जो बहुत विश्वास के पात्र था, हाँ, तो रिलायबल पर्सन था। तो फादर क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की बना देते हैं ट्रस्ट, फादर क्या कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की बनाते हैं वहां पे ट्रस्ट, हाँ। फादर मेक्स अ ट्रस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आयरन में, और फादर अपने प्रॉपर्टी की ट्रस्ट कैसे बनाते हैं, देखो अपने उस फ्रेंड को वो क्या बना देते हैं वहां पे, ट्रस्टी बना देते हैं। फ्रेंड को क्या बना देते हैं, फादर ट्रस्टी बना देते हैं, हाँ। फादर को फिर लॉ के लैंग्वेज में बोला जाता है सेटलर, जो ट्रस्ट बनाता है ना उसको क्या बोला जाता है, सेटलर बोला जाता है। फादर ट्रस्ट किसके फेवर में बना देते बोलो, अपने फ्रेंड के, हाँ। और उनको बोल देते कि आपको सारी प्रॉपर्टी क्या करनी है, यहाँ पे संभालनी है, हाँ। एंड क्या हो जाता है देखो, किसके बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी संभालनी है, उस बच्चे के, सन के, तो वो सन कौन हो जाएगा बोलो, बेनिफिशियरी। अब सन अभी कितने साल का है, लेट मी नो, 10 years, ओके। 10 years का मतलब ऑफकोर्स ये जो ट्रस्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना कि फादर की सारी प्रॉपर्टी जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक ट्रस्टी संभालेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बोलो, फादर के बीच में और फ्रेंड के बीच में, मतलब सेटलर के बीच में और ट्रस्टी के बीच में। साइन नीचे किसके बोलो, फादर और ट्रस्टी की साइन है, हाँ। और कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी मतलब वो प्रॉपर्टी किसके बेनिफिट के लिए संभालनी है वहां पे, उस सन के बेनिफिट के लिए संभालनी है, ओके। तो ये ट्रस्ट डीड बन गया। ऑफ कोर्स आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट पे बेनिफिशियरी का साइन होगा क्या बोलो, नहीं, वो तो 10 साल का बच्चा है ना, तो वो तो साइन करने के लिए केपेबल ही नहीं है, तो उसका कोई वहां पे रोल है क्या, नहीं। ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रस्ट किसके बीच में होगा, फादर एंड फ्रेंड, मतलब ही सेटलर एंड ट्रस्टी के बीच में वो ट्रांजैक्शन ऑफ द ट्रस्ट या ट्रस्ट डीड बन गया, हाँ। बेनिफिशियरी बस कौन है वहां पर, सन इज कंसिडर्ड एज अ बेनिफिशियरी। नाउ व्हाट हैपेंड, फादर की डेथ हो गई, फिर ट्रस्टी ने प्रॉपर्टी संभालना शुरू कर दिया, हाँ। ऑफ कोर्स ना आपको पता है पैसा खराब चीज होती है, एक बार पैसा आता है तो इंसान मिसयूज के लाइन में भी आसानी से चला जाता है। तो इस फ्रेंड ने भी वही किया, उस प्रॉपर्टी में बहुत उसने यूज किया, बहुत सारे पैसों का उसने अफरा तफरी कर दिया एंड ऑल दैट, हाँ। जब अब ये बच्चा बड़ा होता है एंड सारे प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए कैपेबल हो जाता है, ओके, उसको आसानी से ध्यान में आ जाता है कि हाँ ट्रस्टी ने पूरे प्रॉपर्टी में संभालने में क्या किया, वहां पे बहुत सारा गोलमाल किया हुआ है, बहुत सारा मिसयूज किया हुआ है, फंड उसने मिसट्रस्ट किया हुआ है। तो क्वेश्चन में कराइज होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ट्रस्ट किसके बीच में था बोलो, फादर और फ्रेंड के बीच में, मतलब सेटलर और ट्रस्टी के बीच में। तो क्या ये बेनिफिशियरी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो ये बेनिफिशियरी एक्शन ले सकता है क्या, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। क्या ये बेनिफिशियरी यहाँ पे एक्शन ले सकता है क्या, हाँ। भले ही ट्रस्ट डीड किसके बीच में, फ्रेंड एंड फादर, स्टिल वो बेनिफिशियरी वहां पे एक्शन ले सकता है क्या, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, ओके। Okay, so answer is yes. The beneficiary can enforce the rights which are created under the trust, though he was not a party to contract between the settler and the trustee. हाँ,
पार्टीज के नाम याद रहेंगे सबको। इवन इन फ्यूचर कभी भी आपने ट्रस्ट वाला ट्रांजैक्शन देखा तो जो ट्रस्ट डीड बनाता है इज कॉल्ड एज अ ट्रस्ट सेटलर, जिसको ट्रस्टी बनाया ऑफ कोर्स ही विल बी कॉल्ड एज अ ट्रस्टी, एंड जिसके बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी रखी गई है ना या वो ट्रस्ट बनाई गई है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ, क्या कंसिडर किया जाएगा उसको, बोलो बेनिफिशियरी। हाँ, तो यस, इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन सेटलर एंड ट्रस्टी, इवन अ बेनिफिशियरी can take action even though he is a stranger to contract. That is first exception. Huh? In case of a trust, a beneficiary can enforce his right under the trust, though he was not a party to contract between the settler and trustee. हाँ, settler and trustee के बीच में भले ही वो party to contract नहीं था, still वो क्या कर सकता है, action वहाँ पे ले सकता है. Okay. Now the second exception is in the case of a family settlement. Second exception क्या बोलो, family settlement. हाँ, and immediately देखो थर्ड एक्सेप्शन इन केस ऑफ अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट. हाँ, ना मैं क्या करूंगी, आपको एक्सेप्शन के लिए एग्जांपल जो दूंगी ना सेकंड एंड थर्ड, इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉमन साथ में एग्जांपल क्या करेंगे देखेंगे. पॉइंट नंबर 2 के लिए और पॉइंट नंबर 3 के लिए साथ में एग्जांपल क्या करेंगे देखेंगे. हाँ, देखो जस्ट विल हैव वन पर्टिकुलर एग्जांपल. एक फादर थे एंड द फादर वाज हैविंग 2 सन. फादर को क्या था, वहां पे 2 सन थे. हाँ, एक डॉटर थी एंड वाइफ थी. ओके, नाउ इस फादर की क्या हो गई, डेथ हो गई. तो फादर की डेथ हो गई तो अकॉर्डिंगली घर में कौन रहा, आप देखो 2 बच्चे, 2 सन. हाँ, और डॉटर है ना विडो ऑफ द फादर, मतलब वो वाइफ वहां पे है. हाँ, क्या हो जाता है देखो, जो मदर है, अब हम इसको विडो की जगह एम कर देते हैं, मतलब मदर है यहाँ पे. हाँ, एंड डॉटर है, मतलब अब वो कौन है बोलो, वहां पे सिस्टर है. ओके, एंड ये 2 लोग है क्या, यहाँ पे ब्रदर है. इनको हम थोड़ा सा चेंज करके से डाल देते, 2 ब्रदर, अ सिस्टर एंड अ मदर. ओके, दैट इज द फैमिली. अब क्या हो जाता है देखो, इन 2 भाइयों के बीच में फादर की जो भी प्रॉपर्टी थी ना, उस प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है, वहां पे फैमिली सेटलमेंट के लिए पार्टीशन डीड वो बनाना चाहते हैं. पार्टीशन डीड समझते हो ना, बंटवारा. हाँ, तो बंटवारे में सिस्टर को कुछ नहीं चाहिए उस प्रॉपर्टी से, मदर को भी कुछ नहीं चाहिए उस प्रॉपर्टी से. हाँ, नाउ क्या हो जाता है देखो, ये जो मदर और सिस्टर है ना, एज आई टोल्ड यू दैट इन दोनों को क्या है, वहां पर कुछ नहीं चाहिए इस प्रॉपर्टी से. हाँ, वैसे तो आपको पता है इनका भी इक्वल हक है प्रॉपर्टी में, इक्वल राइट बनता है इनका प्रॉपर्टी में, बट स्टिल इन जनरल आपको पता है कि हिंदू कल्चर में लोग ऐसे मदर और डॉटर फैमिली प्रॉपर्टी से कुछ पैसे लेने में सच इतना कुछ इंटरेस्टेड नहीं होते. हाँ, बट इनकेस फैमिली सेटलमेंट में ना एक पॉइंट जो डिसाइड होता है, वो एक पॉइंट क्या होता है कि जब सिस्टर का मैरिज फिक्स होगा. हाँ, जब सिस्टर का क्या होगा, मैरिज फिक्स होगा, तो इस फैमिली प्रॉपर्टी से कुछ अमाउंट दोनों भाई सिस्टर के मैरिज के लिए वहां पे क्या करेंगे, देंगे. हाँ, एंड फैमिली प्रॉपर्टी से मंथली कुछ अमाउंट ये दोनों भाई किसको देंगे, वहां पे हमेशा मदर को खर्चे के लिए देंगे. हाँ, ये पूरा मिलकर फैमिली सेटलमेंट इनके बीच में बना. अब इस पर्टिकुलर फैमिली सेटलमेंट में ना इन दोनों भाइयों की साइन है, सिस्टर और मदर की साइन नहीं है, क्योंकि ये फैमिली सेटलमेंट इन दोनों भाइयों ने किया कि जब उनके सिस्टर का मैरिज फिक्स होगा तो सिस्टर के मैरिज के लिए वो पैसे क्या करेंगे, वहां पे देंगे, एंड साथ ही साथ वो क्या करेंगे, मदर को मंथली कुछ अमाउंट देते वहां पे रहेंगे. ओके. हाँ, तो इस मदर और सिस्टर को कुछ अमाउंट देने के लिए डिसाइड हो गया, जैसे कि सिस्टर को शादी पे और मदर को मंथली कुछ अमाउंट देने के लिए क्या हो गया, वहां पे डिसाइड हो गया. हाँ, ना आगे देखो क्या आ जाता है कुछ. अब तो ये ब्रदर दोनों हाँ बोल देते हैं, बट कुछ दिनों के बाद में ये दोनों भाई क्या करते हैं, जब शादी फिक्स होती है उनके सिस्टर की, तो दोनों के दोनों पैसे देने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं. हाँ, एंड सेम वे कुछ दिनों बाद वो मदर को भी वो जो अमाउंट डिसाइड हो गई थी वो देने से मना कर देते. तो क्वेश्चन मार्क था कि क्या ये मदर और सिस्टर यहाँ पे एक्शन ले सकती है. हाँ, ये तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट याद रखो स्टिल ये बेनिफिशियरी है ना, दोनों दोनों के बेनिफिट के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ है, तो यस मदर और सिस्टर क्या कर सकते हैं, एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं. हाँ, देखो सेकेंड पॉइंट, if the terms of family settlement are reduced into the writing, the member of the family who originally not been parties to the settlement may enforce the agreement. ये जो फैमिली मेंबर्स है, हाँ,
ये पार्टीज टू एग्रीमेंट नहीं है, स्टिल ये क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं. हाँ, टू ब्रदर एक्स एंड वाई एग्रीड टू पे एन अलाउंस ऑफ 20,000 टू मदर ऑन अ पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी. करना क्या, बंटवारा होने पे वो 20,000 रुपए मदर को अलाउंस पे करने के लिए दोनों भाई एग्री करते हैं, बट लेटर ऑन दैट डिनाइड टू बी अबाइड बाय इट. हाँ, held their mother although stranger to contract. हाँ, क्या कर सकती, कैन रिक्वायर देयर सन्स फॉर सच अलाउंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. मदर वो एक्शन ले सकती है. ओके, तो दो एक्सेप्शन हमने अभी डिस्कस किए इन केस ऑफ अ ट्रस्ट. हाँ, बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो ही इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, एंड इन केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट अगेन अ मदर, हाँ, और अ फैमिली मेंबर जिसके बेनिफिट के लिए उस एग्रीमेंट में कुछ लिखा है, वो भले स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या कर सकता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट